Okay students, so we had done the chapter the desert animals and we had read about the animals which are found in the deserts. So now we are going to start with the exercise part, and today we will do the first and second question. So first is talk to your partner and say whether the following statements are true or false. आपको ये statements पढ़कर बोलना है कि जो statements हैं ये true हैं या false हैं. फर्स्ट इज़ नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. कोई भी जानवर पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता. सो इट इज़ ट्रू. डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स. सो बच्चों दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. सॉरी, दिस इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट बिकॉज deserts are not endless sand dunes. There are some rocks and small bushes also. So it is false. Third is most snakes are harmless. दैट इज़ ट्रू. ये हमने पढ़ा है कि जो अधिकतर जो सांप हैं वो हानि रहित होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते. स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड. दैट इज़ ट्रू. सांप जो हैं वो सुन नहीं सकते, बस हमारी जो वाइब्रेशंस हैं थ्रू द ग्राउंड दे कैन फील दैट ओनली. कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्स. सो दैट इज़ नॉट राइट क्योंकि कैमल्स डू नॉट स्टोर वाटर इन देयर हम्स. दे आर फुल ऑफ फैट्स. Second question is answer the following questions. How do desert animals survive without water? तो ये आपने यहाँ से लिखना है. Desert animals cannot survive without water. They find different ways of coping with the harsh desert conditions. For example, gharials spend the hottest part of the day in cool underground burrows, and darkening beetles catch moisture on their legs and then lift them into the air till the drops trickle down into their mouths. ये हमने चैप्टर से ही आंसर इसका लिया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू mongoose किल स्नेक्स. नेवले सांप को कैसे मारते हैं. इसका आंसर आपको 6th पैराग्राफ में मिलेगा. तो ये यहाँ लिखा है mongoose किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट that they dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves, and after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. ठीक है. Next, how does the hump of the camel help them to survive when there is no water? जो कैमल के ऊपर कुबड़ होता है वो उसे ज़िंदा रहने में कैसे हेल्प कर सकता है जब वहाँ उनके पास पीने के लिए पानी ना हो. तो हम लिखेंगे द humps of the camels help the animals to survive in the desert by acting as storage container. The hump is full of fat that nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. Okay, so these were the 3 questions. Now read the words or phrases in the box. Phrases you know बच्चों, group of words which need subject and predicate to be a complete sentence. Now with your partner find their meaning in the dictionary. So पहले आपको इन शब्दों के जो मीनिंग हैं जैसे harsh conditions, harmless, survive, intruder, threatened, predator, then prey and continually, इनके जो मीनिंग हैं वो डिक्शनरी में ढूंढकर फिर आपको ये जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पे इनको फिल करना है. जैसे ये ब्लैंक्स हैं, इन्हीं शब्दों में से आपको इनमें फिल करना है विद अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो लेट्स डू इट. ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू डैश. स्ट्रगल टू सर्वाइव इन डैश इन हार्श कंडीशंस. तो पहले आएगा आपका सर्वाइव नंबर 1 में और हार्श कंडीशंस आएगा नंबर 2 में. ओके, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस 3, ये 2. ठीक है. सम आर डेंजरस व्हेन डैश. सम आर डेंजरस व्हेन थ्रेटन्ड. ओके. इफ एन डैश इज नोटिस्ड. इफ एन इंट्रूडर, ये हो गया 4th, ये आ गया 5, ये 3, 4, 5.
तो इंट्रूडर आ गया फिफ्थ में। इफ़ एन इंट्रूडर इज़ नोटिस्ड दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स। दे स्ट्रगल डैश फॉर फूड। दे स्ट्रगल कंटिन्यूली। तो सिक्स में आपका आएगा कंटिन्यूली। ओके, फॉर फूड एंड वाटर। सम एनिमल्स आर कॉल्ड प्रेडेटर्स बिकॉज दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, ये इसका आंसर है। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट struggle to survive in harsh conditions. Though most of the animals are harmless, some are dangerous when threatened. If an intruder is noticed, they attack or bite to save themselves. They struggle continually for food and water. Some animals are called predators because they prey on other animals. तो ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया और आपके जो ब्लैंक्स थे वो भी फिल हो गए। तो इससे अगले जो पार्ट हैं उसमें आपको स्पीकिंग पार्ट है और फिर थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसे अपनी नोटबुक्स में अच्छे से करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।